Good morning, student of class 7. I am a computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today I am going to start a new chapter number 6. Okay, chapter number 6, more on spreadsheet. Okay, so let's start. And as all of you know, this is the syllabus for second term examination. Okay, I hope that all of you have already marked these chapters. Okay, and this is the content of this chapter. In this video, I am going to discuss selecting cells, entering special numbers and date and time, modifying content of a cell using redo and undo features, inserting cells, column and rows, and deleting cells, column and rows. Okay, so in this video I am going to discuss these topics. Okay, so first topic is selecting cells. Okay, selecting cells. So most of the editing operation performed on the worksheet are done by selecting one or more कॉलम्स और द इंटायर वर्कशीट। हम लोग जब भी कोई भी एडिट करते हैं वर्कशीट के अंदर, तब हम लोग क्या सिलेक्ट करते हैं? कोई भी एक सेल सिलेक्ट करते हैं, कोई एक कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कोई रो सिलेक्ट करते हैं, और इंटायर वर्कबुक को भी हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, सो टू फर्स्ट इज टू सिलेक्ट ए सेल, सिंपली क्लिक ऑन द सेल। हम लोग जब भी कोई भी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, वो सिलेक्ट कर देंगे, क्लिक कर देंगे उस सेल के ऊपर। ओके, वो सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, टू सिलेक्ट ए रो, क्लिक ऑन द रो हेडर। जो यहाँ पे के नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 5 6, उस पर हम लोगों को क्लिक करना है। वो एंटर रो क्या होगा, वो रो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, सेम सिमिलरली टू सिलेक्ट ए कॉलम, क्लिक ऑन द कॉलम हेडर। जो ABCD करके लिखा होता है कॉलम के ऊपर, जो नेम होता है कॉलम का नेम, उस पर हम लोग सिलेक्ट कर लेना है। ओके, ए को सिलेक्ट कर लेना है, तो ए कॉलम जो पूरा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, to select a range of cell row columns, place the mouse pointer to the first cell row or column and drag the mouse pointer to the desired location before releasing the mouse button. Okay, so हम लोग जब कोई भी सेल रेंज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को जो माउस बटन है, लेफ्ट माउस बटन है, उसको प्रेस करके रखना है और ड्रैग करना है। जितना तक हम लोग को चाहिए उतना तक हम लोग को ड्रैग करना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली जो रेक्टेंगुलर शेप है वो क्रिएट हो जाएगा, और जो सेल हम लोगों ने सेल रो और कॉलम जितना सारा रेंज हम लोग को सिलेक्ट करना था वो लोग हम लोग कर पाएंगे। ओके, टू सिलेक्ट एडिशन रोज column, selected first row column and then hold down the shift key while selecting the last row and column. Okay, next is select non-adjacent rows and columns. Select the row and column, then hold down the control key while selecting the other rows and columns. Okay, here you can see these to select the first row and column, hold down the shift key. Okay, next is to select first rows and column, hold down the control key. Okay, remember these things. Okay, to select the entire worksheet, click on the blank header on the corner of a column A और रो 1। ऊपर एक तो हम लोग देखेंगे कि कॉलम A और रो 1 के बीच में एक ब्लैंक हेडर रहता है, उस पर जाके हम लोग को क्लिक करना होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी वर्कशीट को फुल सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ब्लैंक हेडर है, ब्लैंक हेडर आप लोग को दिख पा रहा होगा। 1 और A के बीच में एक ब्लैंक हेडर है, उसमें हम लोग को क्लिक करना होगा, तो फिर पूरा जो वर्कशीट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, और आप लोग ये भी कर सकते हैं कि यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द इंटर वर्कशीट बाय क्लिकिंग प्रेसिंग Ctrl+A को सिलेक्ट करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि पूरा जो वर्कशीट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, next is entering special numbers, date and time. Okay, entering special numbers in Excel, if you want to enter a number like 055 in a cell and then press the enter key, it will be display 55. Okay, that means जो पहले जो जीरो होता है उसको हटा देता है। Okay, so enter a special number like 055, place the apostrophe before the number. Okay, apostrophe आपको डालना होगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे apostrophe आप लोगों को डालना होगा। then and then press the enter key, the number will shown display as 055. However, this type of entry will be taken as text. Okay, आप लोग, लेकिन एक चीज़ होगा कि जो आप लोग एपोस्ट्रोफी डाल देंगे तब आप लोगों का ये नंबर एज नंबर सिलेक्ट नहीं होगा, एक टेक्स्ट की तरह ये सिलेक्ट होगा। ओके,
तो फिर क्या करना होगा, हम लोगों को एपोस्ट्रोफी डालना होगा, उसके बाद ही जो फर्स्ट जो जीरो है वो हम लोगों के एक्सेल शीट में शो करेगा, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। लेकिन एपोस्ट्रोफी डालने से क्या होता है, ये नंबर काउंट नहीं होता, ये टेक्स्ट वाइज हम लोगों को दिखाएगा। ओके, टेक्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज एंटरिंग डेट एंड टाइम। ओके, इन एक्सेल यू कैन ऑल्सो एंटर डेट एंड टाइम इन ए सेल। हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी डेट और टाइम को हम लोग एक्सेल के जो ये जो रोज है, ओके, सेल है, यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। ओके, to separate date and time elements, user slash or follow these steps to enter date and time different format। हम लोग आसानी से हम लोग स्लैश दे के भी डेट एंड टाइम को लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है, आप लोग उससे भी हम आसानी से डेट एंड टाइम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल आफ्टर एंटरिंग द डेटा इन द सेल। ओके, आप लोगों को क्या करना होगा कि एक कर लेना होगा। ओके, क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन प्रेजेंट इन द सेल ग्रुप अंडर द होम टैब। आप लोगों को यहाँ पे होम टैब दिख रहा होगा, वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको आप लोगों को सेल ग्रुप को क्लिक करना होगा। ओके, सेल ग्रुप को क्लिक करने के बाद सिलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन इन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। आप लोगों को तो लास्ट में जो ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्मेट सेल है वो। ओके, उसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा, ये जो डायलॉग बॉक्स है फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। आप लोग और भी एक चीज़ कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। ओके, कोई भी सेल के ऊपर राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करने से भी ये जो मेनू है ये ओपन होता है। ओके, उसमें से जाके आप लोग आसानी से फॉर्मेट सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेम प्रोसेस होगा। Select the desired format by clicking on the date and time option in the category list, the number tab। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नंबर टैब सिलेक्टेड है, नंबर है, अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है। ओके, सो आप लोगों को नंबर टैब में आप लोगों को डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करना होगा। ओके, डेट आप लोगों को दिख पा रहा होगा, डेट यहाँ पे है और टाइम यहाँ पे है। ओके, आप लोग वहाँ पे क्लिक करेंगे और से आप लोगों को फॉर्मेट जो है वो चूज करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ओके प्रेस करना है। आपका डेट एंड टाइम जो होगा आप लोग सिलेक्ट करेंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि वो इंसर्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग कंटेंट ऑफ ए सेल। So we can modify the content of a cell either by replacing it or by using edit mode। Okay, so replacing the content of a cell, enter the data as shown, select the B4 cell whose content needs to be modified। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये है बी कॉलम और ये है 4। ओके, यहाँ पे जो 1200 लिखा हुआ है इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, तो फिर हम लोग को क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिलेक्ट करना होगा। ओके, then click on the click on the cell B4 and then type 1300 as a new value, the previous value will be modified with the new one। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने आसानी से उसको मॉडिफाई कर लिया है। ओके, कुछ भी नहीं करना है, खाली उस सेल को सिलेक्ट करना है और जो न्यू वैल्यू है उसको हम लोग को लिख देना है। ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग एडिटिंग मोड। यूजिंग एडिटिंग मोड, ओके, सिलेक्ट द B4 सेल एंड डबल क्लिक ऑन इट। जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्या इसके जो सेल है B4 सेल है उसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे, ये जो सेल है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। ओके, द इंसर्ट पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी ब्लिंक विद इन द सेल। जो ब्लिंकिंग लाइन होता है, हम लोग को पता है कि कर्सर में ब्लिंकिंग लाइन होता है, वो वहाँ पे क्या होगा कि ब्लिंक करना स्टार्ट। The edit mode will be indicate that on the left side of the status bar, make the changes and in the current cell, and then edit mode will be changes to the ready mode। Okay, next is redo and undo features। Okay, undo features cancel the last action that you perform in your worksheet। हम लोग को पता है कि रीडू undo किस लिए यूज होता है, undo इसलिए यूज होता है कि कैंसिल द लास्ट एक्शन and redo means cancel the undo command। Okay, so undo command cancel the last action that you performed in your worksheet, on the other hand redo command cancel the undo command and retrieve the last action। Okay, to redo undo most recent click on the redo undo button quick access toolbar। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो
है ये, इसको हम लोग क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इसमें रीडू है, अंडू है। ओके, सो आप लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं वहां से। ओके, नेक्स्ट इज inserting columns, inserting cells, columns and row. Okay, so you can insert one or more cells, rows and column in a worksheet। हम लोग आसानी से कहीं पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज क्लिक ऑन द सेल वेयर ये न्यू सेल हैज टू बी इंसर्टेड। हम लोग को क्या करना होगा कि जो हम लोग जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर ऊपर उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, उस सेल को हम लोग को सिलेक्ट कर लेना है। Click on the drop down arrow of the insert button in the cell group in the home tab and select the insert cell option from the display menu। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये होम टैब है और ये है क्या है, इंसर्ट सेल ऑप्शन। ओके, इंसर्ट सेल ऑप्शन। ओके, उसको क्लिक करने के बाद ये जो इंसर्ट बोल के ये जो नया विंडो है ये ओपन हो जाएगा। ओके, ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, एंटर रो, entire column। Okay, so the insert dialog box will be appear that you asked whether you want to shift right or down, insert an entire row or column। Okay, select appropriate radio button and click on the OK बटन। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे रेडियो बटन है, एज पर योर चॉइस आप लोगों को वो रेडियो बटन क्लिक करना है। ओके, एज पर द सजेशन। Next, a blank cell will be inserted at the current cell position and other cell will be shifted accordingly। Okay, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये blank जो cell है ये automatically inserted हो गया है यहाँ पे। Okay, next is inserting row। So first is click on the cell, a new row has been inserted। Okay, click on any cell where a new row has been inserted। Next is same process, click on the drop down arrow, then insert button, cell group, home tab, the inserted sheet row option from the display menu। A blank row will be inserted in the current row position and other row will be shifted downwards। Okay, सेम प्रोसेस है, होम टैब में जाना है और यहाँ पे जाके आप लोग इंसर्ट शीट रो उसको जाके क्लिक करना होगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक न्यू रो इंसर्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज inserting column। Okay, inserting column, so click on the cell of the column where a new column has to be inserted। Okay, आप लोगों को क्या करना होगा कि जो आप लोगों को पहले सिलेक्ट कर लेना है। ओके, कहाँ पे आप लोग जो सेल हो गया, कॉलम हो गया, आप लोग इंसर्ट करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो इन द इंसर्ट बटन इन द सेल ग्रुप एंड द होम टैब। सेम चीज़ है। ओके, सेम प्रोसेस है, होम टैब में जाना है, उसके बाद इंसर्ट बटन में जाना है, उसके बाद यहाँ से इंसर्ट शीट कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देन ए ब्लैक will be inserted at the current column position and other column will be shifted towards right। ओके, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक ब्लैंक कॉलम क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट इज deleting cells, rows and columns। Okay, so deleting cell different from deleting a content, deleting the content of a cell। We delete the content of a cell, the cell remains there but only its content erased। If you delete the cell, the cell along with its content will be removed। that means हम लोग यहाँ पे क्या बोला गया है कि जब भी हम लोग कोई भी सेल को डिलीट करते हैं तो सेल में जो कंटेंट रहता है उसको भी वो भी डिलीट हो जाता है। ओके, इफ यू डिलीट द सेल, द सेल अलोंग विथ द कंटेंट इज रिमूव्ड। दैट मीन्स हम लोग जब सेल को डिलीट करते हैं तो क्या होता है उसमें जो कंटेंट रहता है वो भी डिलीट हो जाता है। ओके, सो use some steps। Okay, click on the cell that needs to be deleted। आप लोगों को क्या करना होगा, सिलेक्ट कर लेना है कौन सा सेल आप लोग डिलीट करना चाहते हैं। सेम प्रोसेस। ओके, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो in the delete group option in the cell group and home tab and select the delete cell option। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिलीट सेल बोल के ऑप्शन है, डिलीट बोल के ऑप्शन है। ओके, डिलीट बोल के यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है और यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा, डिलीट सेल को चूज करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी को आप लोगों को चूज करना होगा। ओके, उसके बाद जो डिलीट बोल के एक विंडो है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो जाएगा। द डिलीट डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, द बॉक्स विल आस्क यू वेदर यू वांट टू शिफ्ट सेल। आप
or delete the entire row or column. Okay, select the appropriate radio button and click on the OK button. As per your requirement you can choose any of the radio button. Okay, आप लोगों को जो लगेगा एज पर योर कंटेंट। ओके, आप लोगों को जो लगेगा आप लोग वो उसको प्रेस कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद आप लोगों को ओके प्रेस करना है। दिस सेल विल बी डिलीटेड फ्रॉम द करंट सेल पोजीशन एंड अदर सेल विल बी शिफ्टेड अकॉर्डिंगली। ओके, जो सेल होगा, सेल हो गया हो, रो हो गया हो, आप लोग क्या करेंगे उसको अकॉर्डिंगली, आपके अकॉर्डिंगली यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो सेल है वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट इज डिलीटिंग रो। सो क्लिक ऑन एनी सेल ऑफ द रो दैट टू बी डिलीटेड। आप लोगों को क्या करना होगा, पहले तो सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, जैसे कि मान लिया ये, ओके, इसको हम लोग को नाम A3 को डिलीट करना है एक। ओके, सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो, सेम प्रोसेस। ओके, सेम प्रोसेस, क्लिक ऑन द होम टैब में जाना है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो डिलीट में क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन एरो में जाके यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डिलीट सीट रो। ओके, उसको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन फ्रॉम डिस्प्ले मेनू, द रो विल बी डिलीटेड एंड फ्रॉम द करेंट पोजीशन एंड अदर्स रो विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स। ओके, ये रो डिलीट हो जाएगा और ये जो 4 वाला है वो 3 हो जाएगा। ओके, ऊपर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज डिलीटिंग कॉलम। क्लिक ऑन द सेल ऑफ एनी क्लिक ऑन द सेल एनी सेल ऑफ द कॉलम टू बी डिलीटेड। सेम प्रोसेस है, आप लोगों को जो कॉलम डिलीट करना है उसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना होगा। ओके, क्लिक सेम प्रोसेस, ड्रॉप डाउन मेनू, यहाँ पे आप लोगों को होम टैब के अंदर यहाँ पे आप लोगों को डिलीट ऑप्शन दिखेगा। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन मेनू होगा वहाँ से आप लोगों को डिलीट सीट कॉलम को प्रेस करना है। ओके, उसके बाद आप लोग क्या देखेंगे, द कॉलम विल बी डिलीटेड फ्रॉम द करेंट पोजिशन, करेंट कॉलम पोजिशन एंड अदर कॉलम विल बी शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। दैट मीन्स जो ये कॉलम है ये डिलीट हो जाएगा और जो सी वाला कॉलम है वो शिफ्ट होके लेफ्ट में आ जाएगा। ओके, सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक। आप लोगों को क्या करना होगा, अच्छी तरह से जो स्टेप्स है उसको लर्न कर लेना है। ओके, लर्न कर लेना है और प्रैक्टिस भी करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप लोग इसको कर नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना होगा उसको। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I'll continue the chapter. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.